अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कतर पर हमले से ट्रंप नाखुश हैं, लेकिन इसराइल से ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक बयान, इसराइल के लिए हुए रवाना। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पर हमले तेज़ कर दिए, मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। आलमी सतह पर इसराइल की मुखालिफत में ज़बरदस्त एहतजाज। हमें जेन जी की सोच के मुताबिक काम करना होगा, नेपाल की नवमुंतखब वज़ीर आज़म पुरअज़्म। लंदन में 1 लाख अफराद का इमिग्रेशन के खिलाफ मार्च, पुलिस से झड़पों में दर्जनों गिरफ्तार। इंडिया पाक मैच, मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाए मोदी हुकूमत पर सवाल। और अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में 2 कश्तियों को हादसा, तकरीबन 200 से ज़्यादा अफराद हलाक। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की जानिब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि कतर में हालिया वाक़यात पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। इसराइली हमले से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं, मगर इस सूरत हाल से इसराइल से ताल्लुक़ात पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया है कि कतर अभी इस नतीजे पर नहीं पहुँचा है कि वो इसराइली हमले के रद्द-ए-अमल के तौर पर इत्तेहादियों से क्या मुतालबा करेगा। Plans are moving forward. What's happened has happened. Obviously, we were not happy about it. The president was not happy about it. Now we need to move forward and figure out what comes next. Because at the end of the day, when all is said and done, there is still a group called Hamas, which is an evil group that still has weapons and is terrorizing. There is still 48 hostages that deserve to be released immediately, all at once. And there is still the hard work ahead of, once this ends, of rebuilding Gaza in a way that provides people a quality of life that they all want. And who's going to do that? Who's going to pay for it? And who's going to be in charge of it? So all that work is still there to be done. All that still needs to be dealt with. You say you're not happy with this. Does it mean we ask the Israelis not to do this again? I think the president's comments speak for themselves on that front. In essence, he didn't like the way it went down. But that said, it's not going to shake. Our relationship with Israel is going to remain strong. And sometimes, things happen or come up in those relationships that perhaps you're not 100% aligned with or what have you. But it's not going to change the nature of our relationship with the Israelis. But we are going to have to talk about it. Primarily, what impact does this have? What happened? What impact does that have moving forward on what comes next? And do you think the Qataris will still work with the U.S.? I met with them. Vice President and I met with the Prime Minister yesterday. I know they had dinner with the President last night. So, we have a relationship with them as well. We've been working on a number of things with them. They've been, for example, very helpful in the DRC, Rwanda, or with the M23. They've been hosting those talks. So we had a visit there earlier this year. I did, and then went back a second time with the President. So they've been good partners on a number of fronts. Will you inaugurate this tunnel in the Temple Mount on Tuesday? There have been reports of that. Well, let me tell you, the city of David is separate. I intend to go to that. I've been to that before. और वहीं इसराइल ने गाज़ा पर हमले तेज़ कर दिए हैं। शुमाली गाज़ा में इसराइली फ़िज़ाइया ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। उन हमलों में मजमूई तौर पर मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने हफ्ते को गाज़ा में हमले जारी रखे और भूखे प्यासे और खौफज़दा फ़लस्तीनियों को अपनी जान बचाने के लिए भागे जाने की वार्निंग पर मबनी पॉम्पलेट भी गिराए गए। गाज़ा में इसराइली तैयारों ने हर 10 से 15 मिनट बाद बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों को निशाना बनाया और अक्सर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का वक्त नहीं मिला। हफ्ते को इसराइल के 3 फ़िदाइया हमलों में गाज़ा के जुनूब मगरिब में वाक़े पब्लिक प्रोसिक्यूशन बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। न्यूजीलैंड, जर्मनी और स्पेन समेत इसराइल के दारहुकूमत तल अबीब में भी हज़ारों अफराद ने गाज़ा जंगबंदी का मुतालबा किया है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फ़लस्तीनियों की हिमायत में हज़ारों अफराद ने मार्च किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया। जर्मनी की दारहुकूमत बर्लिन में भी रैली में मुजाहिरीन ने गाज़ा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा किया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि इसराइल अरब सलामती को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कतर पर इसराइली हमले को खुली जारहत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि ये इक़दाम अरब और आलमी सलामती को बराह रास्त ख़तरे में डाल रहा है। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास मुनक़िद हो रहा है, जिसमें इसराइली जारहत के असरात पर गौर किया जाए।
नेपाल के नवमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म सुशीला कार्की ने करप्शन के खात्मे के लिए मुजाहिरीन के मुतालिबात पर अमल करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म सुशीला कार्की ने ओहदा संभालने के बाद इतवार को अपने पहले बयान में कहा कि हमें जेन ज़ी की सोच के मुताबिक काम करना होगा। 73 साला साबिक़ चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ग्रुप जिस चीज़ का मुतालबा कर रहा है वो करप्शन का खात्मा, अच्छी हुक्मरानी और मुआशी मसावात हैं। आपको और मुझे इसे पूरा करने का आज़म करना होगा। उनका मज़ीद कहना था कि वो और उनकी अबूरी हुकूमत 6 माह से ज़्यादा एक दिन भी यहाँ नहीं रहेगी। जुमे को नेपाल की साबिक़ चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अबूरी हुकूमत की सरबराही संभालते हुए मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल किया। जलेर गयो र हाम्रा जति पनि रेकर्डहरू, प्रमाणहरू, सर्वोच्च अदालतका फाइलहरू सबै नष्ट भएर हामीलाई एउटा चाहिँ अर्को समस्या, ठुलो समस्या, भौतिक भवनको क्षतिले त केही हुँदो रहेनछ, त्यो त बनाउन पनि सकिन्छ, तर ती रेकर्डहरू, ती जमानाका फाइलहरू, ती विवरणहरू सम्पूर्ण हाम्रो नष्ट भएर हामी यतिखेर शून्यमा पुगेका चाहिँ छौँ। हाम्रो अवस्था शून्यमा छ। हाम्रा सुरक्षा निकायहरू पनि मात्रै जलेन, हाम्रो सुरक्षाका कार्यरत कर्मीहरूको पनि देहावसान भयो। त्यहाँका चाहिँ अहिले हाम्रो सम्पूर्ण देशभरिका चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई दिएको वाहनहरू अब अर्को खरिद नगरी नहुने अवस्थाहरू चाहिँ विद्यमान चाहिँ छ। र यस घडीमा यो मलाई अलिकति लागेको कुरा के हो भने यसपल्टको यो जुन हत्या हिंसा भयो, चाहे हत्या होस् चाहे यो आगजनीका कुराहरू भएका छन्, यो टिपिकल कस्तो भने मुलुकको अत्यन्त आवश्यक जुन संस्थाहरू छ त्यसमा छानी प्रहार भएको छ। प्रहरीहरू सुरक्षाको लागि अनिवार्य थिए, तिनलाई प्रहार भयो। ती बिटहरू सम्पूर्ण र प्रहरीका चाहिँ जुन चौकी थानाहरू सबै जले। अदालतका फाइलहरू सम्पूर्ण नष्ट भएर गयो। हाम्रै सिंहदरबारभित्रका पनि कैयौँ त्यस्तो पुराना फाइलहरू ती सबै नष्ट भएर गयो। बडो आश्चर्यको कुरा छ कि किन यसरी यो चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि अत्यन्त आवश्यक संस्थाहरू देशको, जसले चाहिँ यो देशको शासन चलाएको छ, ती भवनहरू र ती मिसिल, ती कागजहरूबाट त्यो हाम्रो चाहिँ के हो भने हामी नष्ट भयो। अलिकति मलाई त यो देखेर लाज पनि लागेको छ। नेपाली नै भएर यो काम गरेको। वस्ती लंदन में इंतहाई दाएंबादों के एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन की जानिब से सनीचर को मुनक्किदा मार्च में 1 लाख से ज़्यादा अफराद जमा हुए, जिसके दौरान झड़पें शुरू हो गई। पुलिस को हजूम पर काबू पाने की कोशिश में नाकाबिल कबूल तशद्दुद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि तकरीबन 1,10,000 अफराद ने इस इंतहाई दाएंबादों के मार्च में शिरकत की। झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब कुछ अफराद मरकज़ी स्टेज तक रसाई हासिल ना कर सके और उन्होंने मुखालिफ मुजाहिरीन के करीब कायम किए गए सिक्योरिटी जोन्स में घुसने की कोशिश की। Into this country, it's tearing us apart. You know, we've got people here, the veterans, our veterans that fought for us and for our freedom, lying on the streets with nowhere to go. But you pop in, get rid of your documents, and you can have a... हैदराबाद से रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आसाम के वज़ीर आला, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और उन सब से मेरा सवाल ये है कि आपके पास पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार करने की ताकत नहीं है, जिसने पहलगाम में हमारे 26 शहरियों का मजहब पूछा और उन्हें गोली मार दी। हम वज़ीर आज़म से पूछते हैं, जब आपने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो BCCI एक साथ कैसे नहीं हो सकता, दहशतगर्दी और पानी एक साथ कैसे नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है, तुमको निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे।
अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। अफ्रीकी मुल्क जमहूरिया कॉन्गो में 2 मुख्तलिफ कश्तियों को हादसा पेश आए, जिसके नतीजे में तकरीबन 200 अफराद जाँ बहक हो गए। कश्तियों को हादसा 10 और 11 सितंबर को एक्वाडोर सूबे से 150 किलोमीटर दूर पेश आए, जिसके नतीजे में 200 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 150 से ज़्यादा अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। बहरीन और कतर के हवाई अड्डे मुसाफिरों के सामान की हिफाजत और बरवक्त तरसील के हवाले से दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। आलमी इदारे जो हवाई अड्डों और फ़िदाई खिदमात की दर्जेबंदी में महारत रखता है की ताज़ा तरीन फहरिस्त में इस साल हैरान कुन नताइज सामने आए हैं। इदारे की दर्जेबंदी में बताया गया है कि बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर में 4थे नंबर पर है और ये यूरोप और एशिया के कई मशहूर हवाई अड्डों पर सबकत ले गया है। इस कामयाबी का सहरा उसके जदीद बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को जाता है, जो गुज़िश्ता बरसों में मुतारिफ़ कराए गए और जिनकी बदौलत गुमशुदा सामान की शरह तकरीबन ख़त्म हो गई। इसी तरह दोहा का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर में 6ठे नंबर पर आया है, जिसने एक बार फिर कतर की हैसियत को दुनिया के नुमाया फ़िदाई मराकज़ में से एक के तौर पर मुस्तहकम किया है। ये कामयाबियाँ सिर्फ बहरीन और कतर तक महदूद नहीं रही, बल्कि सऊदी अरब के हवाई अड्डों ने भी पैकेज सिस्टम में नुमाया तरक्की की है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। कतर पर हमले से ट्रंप नाखुश हैं, लेकिन इसराइल से ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक बयान, इसराइल के लिए हुए रवाना। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पर हमले तेज़ कर दिए, मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। आलमी सतह पर इसराइल की मुखालिफत में ज़बरदस्त एहतजाज। हमें जेन जी की सोच के मुताबिक काम करना होगा, नेपाल की नवमुंतखब वज़ीर आज़म पुरअज़्म। लंदन में 1 लाख अफराद का इमिग्रेशन के खिलाफ मार्च, पुलिस से झड़पों में दर्जनों गिरफ्तार। इंडिया पाक मैच, मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाए मोदी हुकूमत पर सवाल। और अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में 2 कश्तियों को हादसा, तकरीबन 200 से ज़्यादा अफराद हलाक। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।